Hello students, I am Aditi Tiwari and we are going to discuss about the human circulatory system. Why we call human circulatory system a cardiovascular system? Do you have any answer? Okay, let's find out. Cardio means heart and vascular means vessels. So, the system comprises of heart and vessels are known as cardiovascular system. As we all know that this system or a network is basically also known as blood transport network because it delivers oxygen and nutrient to the cells of our body which convert them into the energy, and during these process waste is also released into our blood, and best example of waste is CO2. Now we will going to talk about the heart. What is our heart? So heart is a soft conical muscular organ which is situated in the thoracic cavity, and basically ये हमारे सेंटर से थोड़ा सा साइड लेफ्ट लंग की तरफ होता है. ओके, एंड आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. एंडोकार्डियम जो अंदर की लाइनिंग होती है हार्ट की उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं. जो मिडिल लाइनिंग होती है, मिडिल लेयर होती है, उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं. एंड जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है हार्ट की दैट इज कॉल्ड इपीकार्डियम. सो बेसिकली आवर हार्ट is made up of 3 types of layers: endocardium, myocardium and epicardium. What is the function of heart? The main function of heart is to pump the blood throughout the body. Do you know that our heart exactly pumps 7,200 liters of blood daily? Could you imagine this? This is too much. Okay, and with this it also supplies oxygen and nutrients to our tissue and removes carbon dioxide and waste from it. Now we will going to talk about the anatomy and structure of human heart. Why it is important? This diagram is going to be very important and it is a basic concept of NEET and class 12th board also. So now we will discuss the whole structure and diagram. Okay, let's start it. As we all know that human heart have 4 chambers. What are these? Right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. These are the 4 chambers. 4 chambers होते हैं हमारे हार्ट में. जो right atrium होता है, left atrium होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. ओके, और इन चारों का ही अपना अपना फंक्शन होता है. दे रेगुलेट द प्रेशर एंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ ब्लड. बेसिकली जो ब्लड है वो इन्हीं चारों चैम्बर्स से होके ही हमारे हार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, हमारा हार्ट इन चारों चैम्बर्स के थ्रू अलग अलग ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और उसे ट्रांसफ़र भी करता है. सो दिस इज़ अ सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा. ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ओके, टेल मी अबाउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कुड यू आंसर? ओके, आई एम गोइंग टू टेल इट. Deoxygenated blood means the blood which do not carry oxygen. Basically, deoxygenated blood carries CO2 and waste. And oxygenated blood carry O2 plus nutrients. Now this concept is clear to you that deoxygenated blood carries CO2 and waste and oxygenated blood carries O2 and nutrients. Deoxygenated blood flows in our veins and oxygenated blood flows in our arteries. And these arteries and veins forms a network called capillaries.
okay, and these capillaries does diffusion, and by the process of diffusion, intake or take place of oxygen and CO2 takes place throughout the body. Okay, now again we will going to discuss the structure in detail. So now these are the four chambers as we have studied here: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Now this is superior vena cava and inferior vena cava, which carry deoxygenated blood, and there is a pulmonary artery also, which also carry deoxygenated blood. Here pulmonary vein carry oxygenated blood, and there is a aorta जो आपको यहाँ पे थिक पाइप सा दिख रहा है. ये क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से कहाँ ले जाता है? हमारी बॉडी में. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहाँ हार्ट में तो उल्टा हो रहा है. यहाँ arteries are carrying deoxygenated blood and veins are carry oxygenated blood. Why? Because यहाँ पे हार्ट में हमारे साथ एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसके अकॉर्डिंग पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो देयर इज ए एक्सेप्शनल केस इन हार्ट ऑल्सो. नाउ यहाँ पे जो आप ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो लाइनिंग पे हार्ट की, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल, जिससे कि पूरा हार्ट बना हुआ है हमारा. ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन, व्हाई वी कॉल दिस डबल सर्कुलेशन? बिकॉज इन आवर हार्ट सिंगल साइकिल में each cycle have 2 time blood flow. Okay, और यहाँ पे 2 तरह का सर्कुलेशन हो रहा है. एक फर्स्टली जो आप देख पा रहे हो जिसे हम बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है इट फॉर्म्स पल्मोनरी सर्किट and its form systemic circuit. अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं. लेट्स चेक आउट. पल्मोनरी सर्किट में या पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से मूव करता है लंग्स की तरफ या लंग्स से मूव करता है हार्ट की तरफ. मीन्स इन दिस सर्कुलेशन exchange of blood takes place between heart and lungs. Systemic circulation में exchange of blood takes place throughout the body and heart. इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. ये 2 तरह के सर्कुलेशन को मिला के ही हमारा क्या बनता है? डबल सर्कुलेशन. नाउ वी विल डिस्कस द होल डायग्राम ऑल्सो. सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखते हैं. आई होप आपको ये पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस कि ब्लड फ्लो कैसे करता है. सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जब वो बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स वहाँ से O2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे जो ब्लड है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. मतलब इस ब्लड में अब क्या है? CO2 है. क्या है? CO2. तो ऑर्गन्स ने हमारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया. नाउ द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे राइट आर्ट्रियम में. कहाँ जा रहा है ये? राइट आर्ट्रियम में. राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड पुश होता है और कहाँ जाता है? हमारे राइट वेंट्रिकल में. देन राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे लंग्स में, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है. ओके, अब लंग्स में यहाँ पे क्या होता है?
हमारे ब्लड का ऑक्सीजनेशन, क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन, एंड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। नाउ हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है और हमारा ब्लड कैसा बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाता है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये पुश ऑन होके जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पुश होके अरोटा के थ्रू अगेन हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और इसी के थ्रू ये पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट होता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ब्लड के थ्रू हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। होप आप लोग को ये ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। दैट इज़ वाई हार्ट में सर्कुलेशन एक बार में, एक साइकिल में 2 बार होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, बाय फॉर्मिंग 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, pulmonary and systemic both. Okay, now we will discuss in next video that how heart works.